بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سلطان ایوبی کے ہدایت پر علی بن سفیان نے سارے ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ملک میں خصوصاً قاہرہ میں صلیبیوں نے بہت سے جاسوس اور تخریب کار بھیج دیے تھے۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کے کردار کشی کی جو زمین دوست مہم چلائی تھی وہ سلطان ایوبی کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اسے جب علی بن سفیان نے اطلاع دی تھی کہ ایک مسجد کا پیش امام ہر رات درس دیتا ہے اور اسلامی نظریات کو بگاڑ رہا ہے، تو سلطان ایوبی نے فوراً ہی یہ حکم نہیں دے دیا تھا کہ اس عالم کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا تھا، علی، مذہب میں فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے، یہ پیش امام کسی فرقے کا بھی ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ قرآن کی اپنی تفسیریں پیش کر رہا ہو۔ میں مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتا، میں حاکم ہوں، عالم نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی تخریب کار ہے تو گرفتاری سے پہلے پوری طرح چھانبین کر لو۔ پیش امام کا درجہ مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ علی بن سفیان خود اس مسجد میں درس دینے نہیں گیا تھا، کیونکہ اسے شک تھا کہ اگر یہ پیش امام واقعی دشمن کا بھیجا ہوا تخریب کار ہے تو اسے کچھ جانتا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہین سراغرسا مسجد میں بھیجے تھے جو 10-12 مرتبہ وہاں گئے اور انہوں نے جو درس سنے وہ مسلمان علی بن سفیان کو سنا دیے۔ آخری ایک رات اس صلیبی عالم نے جہاد پر درس دیا اور یہ تعویذ پیش کی کہ جو صلاح الدین ایوبی نے بھی سنی۔ سراغرسانوں نے یہ درس علی بن سفیان کو سنایا تو کوئی شک نہ رہا۔ علی نے سلطان ایوبی کو بتایا اور یہ رائے دی کہ اگر یہ شخص صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار نہیں تو اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف وہ آدمی پیش کر سکتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو یا اس کا دماغ چل گیا۔ سلطان ایوبی نے یہ رپورٹ بڑی کی غور سے سنی اور کہا کہ معاملہ بہرحال مذہب، مسجد اور پیش امام کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی بن سفیان کے ساتھ خود بحرون میں درس سننے جائے گا اور خود یقین کرے گا کہ پیش امام کی نیت اور رسمیت کیا ہے۔ جہاد کے ساتھ حیوانی جذبے کے ذکر نے سلطان ایوبی کے کان کھڑے کر دیے۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے یہ بحرون تیار کرایا تھا جس میں وہ مسجد میں گئے تھے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس صلیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا اور احمد کمال نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی۔ اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے زر و جواہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی علی بن سفیان کے تہہ خانے میں تصدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے ہوتے ہیں۔ اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے اور ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ وہ ایسی بے پرواہی کے سے لہجے میں کہتا تھا جیسے یونی سے موسم کا خیال آ گیا۔ دوسرا کہتا تھا بارش آئی، اس سے جواب ملتا تھا آسمان بالکل صاف ہے۔ دوسرا کہتا تھا ہم گٹائیں لائیں گے، اور وہ کہکا لگاتا تھا۔ کہنے کی سمجھ یہ ہوتی تھی کہ یہ مکالمہ کوئی اور سن لے، جب دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بولا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو علی نے معلوم کی تھی وہ یہی تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کے ایک قصبہ شوبت تھا جو ایک قلعہ تھا، یہ صلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا۔ ان انکشافات کے سہارے سلطان ایوبی اور علی بن سفیان بحرون میں مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مکالموں نے عالم کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہے، اس سے نیچے سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا۔ اس مکالمے کے بعد کا کہکا خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہکا لگایا تھا، وہ اپنے ساتھ 6 جانبازوں کو بھی لے گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت مدد دے۔ علی بن سفیان نے اس جاسوس کو اور دونوں لڑکیوں کو اپنے تہہ خانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابض کس طرح ہوا اور اس سے پہلے وہ جس جھونپڑے میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا۔ وہاں کے مختلف لوگوں نے
जो बयान दिए इससे पता चला कि ये शख्स 2 बीवियों के साथ इस वादी में आया। पहले एक आदमी के घर मेहमान रहा। जब लोगों ने देखा कि ये तो कोई आलम फाजल है तो उन्होंने इसे ये चौंकड़ा दे दिया। वो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। वहाँ बहुत मुद्दत से एक पेशमाम था। ये शख्स पेशमाम का मरीज बन गया। 15-16 रोज बाद पेशमाम ने मस्जिद में ही पेट दर्द की शिकायत की। ये शिकायत इतनी तेजी से बढ़ी कि इसके बाद पेशमाम मस्जिद में ना आ सका। हकीमों ने घर जाकर देखा तो मगर वो तीसरे रोज मार गया। उसके बाद इस आलम ने लोगों से बात करके मस्जिद संभाली। उसने ऐसा तासर पैदा किया कि लोग इसके कीमतमंद हो गए और इसकी जरूरत के मुताबिक उसे मकान दे दिया। अली बिन सुफियान के पूछने पर लोगों ने उसे बताया कि उन्होंने कई बार इस शख्स को पेशमाम के लिए खाना ले जाते देखा था। अली बिन सुफियान जान गया कि पेशमाम के साथ ने जहर किया है और उसे रास्ते से हटाकर मस्जिद पर कब्जा किया था। इस जासूस के घर की तलाशी में बहुत से हथियार बरामद हुए थे जो छुपाए हुए थे। वहाँ जहर भी बरामद हुआ। वो एक कुत्ते को दिया गया तो कुत्ता 3 दिन बेचैन रहा और गिरता रोकता रहा। तीसरे दिन शाम के बाद कुत्ता मर गया। अली बिन सुफियान ने अपनी तफ्तीश सुल्तान अय्यूबी के आगे रखी तो सुल्तान ने उसे कहा, इन तीनों को कैद में खूब परेशान करूँ और उन्हें खौफजदा किए रखूँ, लेकिन मैं इन्हें जिंदात के हवाले नहीं करूँगा और उन्हें कैद में भी नहीं डालूंगा। फिर आप क्या करेंगे? अली बिन सुफियान ने पूछा। मैंने इस हिफाजत और इज्जत से वापस भेज दूंगा। अली बिन सुफियान ने हैरत ज़दा होकर सुल्तान अय्यूबी के मुंह की तरफ देखा। सुल्तान ने कहा, मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ अली, अभी मुझसे कुछ ना पूछना। मैं सोच रहा हूँ कि ये बाजी लगाऊं या नहीं। उसने जरा तवक्कुफ से कहा, कल दोपहर के खाने के बाद नायब सलारों, मुशीरों, आला कमानदारों और इंतजामिया के हर शोबे के सरबराह को मेरे पास ले आना। तुम्हारी मौजूदगी भी जरूरी है। अली बिन सुफियान ने इस रात पहली बार इस आलम से तफ्तीश की ली, लेकिन वो बड़ा सख्त आदमी निकला। उसने कहा, गौर से मेरी बात सुन लो अली बिन सुफियान, हम दोनों एक ही मैदान के सिपाही हैं। तुम मेरे मुल्क में कभी पकड़े गए तो मुझे उम्मीद है कि तुम जान दे दोगे, अपने मुल्क और कौम को धोखा नहीं दोगे। तुम यही तुमको मुझसे रखोगे। मुझे मालूम है मेरा अंजाम क्या होगा। अगर मैं तुम्हें वो सारी बातें बता दूं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो भी तुम लोग मुझे बख्शोगे नहीं। मुझे इस तहखाने में मरना है तो तुम जिल्लात से मरवाओ दो, खुद व अजियत में डालकर मार दो, फिर मैं क्यों अपनी कौम को धोखा दूं? मुझे उम्मीद है कि तुम अपना इरादा बदल दोगे। अली बिन सुफियान ने कहा, क्या तुम इन 2 लड़कियों की बचाने की खातिर ये पसंद नहीं करोगे कि मैं जो पूछूं वो मुझे बता दो? कैसी इज्जत? उसने जवाब दिया, इन लड़कियों के पास सिर्फ हुस्न और नाज नखरे हैं, या वो उस्तादी है जिससे वो पुत्र को भी मुंह कर देती है। इनके पास इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। यही तो इन्हें सिखाया जाता है कि अपनी इज्जत से दस्तबरदार हो जाओ। हम लोग अपनी जान और इज्जत बहुत ढूंढने करते हैं। तुम इन लड़कियों के साथ ज्यादा भी शुरू करना चाहो कर लो, इन्हें मेरे सामने जलील कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। लड़कियां भी तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी। जासूस लड़कियों को हम सजाए मौत दे दिया करते हैं, इन्हें जलील कभी नहीं किया। अली बिन सुफियान ने कहा, हमारा मजहब औरत को जिद में डालने की हमें इजाजत नहीं देता। मेरे दोस्त जासूस ने कहा, तुम प्यार का हरबा इस्तेमाल करो या जिद का। हम में से कोई भी अपने साथियों की निशानदेही नहीं करेगा जो हमारी संस्कृति की जड़ों में बैठे हुए हैं। तुमने लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करने का वादा किया है। मैं इसके बस तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये मेरी और तुम्हारी जंग नहीं, सलीब और चांद तारे की जंग है। मैं मामूली से जासूसों में से नहीं हूँ जो इधर की खबरें उधर भेजते हैं और आइंदा तुम्हारे आइंदा के इरादे मालूम करते रहते हैं। इस शोबे में मेरा रुतबा बहुत ऊंचा है। मैं आलम हूँ। अपने मजहब का मुतालिया उतना ही गहरा किया जितने तुम्हारे मजहब का। अंजील और कुरान की तह तक पहुंचा हूँ। मैं इतराफ करता हूँ तुम्हारा मजहब बेहतर और सादा है। ये हर इंसान का मजहब है जिसमें कोई पेचीदगी नहीं। इसकी मकबूलियत की वजह भी यही है। मगर मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे मजहब की असलियत को बिगाड़ दिया है ताकि इसकी मकबूलियत खत्म हो जाए। यहूदियों ने मुसलमान उलमा के बेस में इसमें बेबुनियाद रवायात शामिल कर दी हैं। इस्लाम तौहीमात के खिलाफ था, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा तौहीम परस्त मुसलमान हैं। मैंने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त मुसलमानों को सजदे करते और नजराने देते देखा है, और ऐसी कई एक बिदतें तुम्हारे मजहब में शामिल कर दी गई हैं। हम एक लंबी मुद्दत से तुम्हारे असल नजरियात को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 मजहब रह जाएंगे, एक ईसाईयत, दूसरा इस्लाम, और ये दोनों उस वक्त तक मारकर आ रहेंगे जब तक कि दोनों में से एक खत्म नहीं हो जाता। किसी भी मजहब को तीरों और तलवारों से खत्म नहीं किया जा सकता। किसी मजहब को तबलीग से भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसका यही एक तरीका है जो मैंने इख्तियार किया था। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस मुहिम में मैं अकेला नहीं, पूरा एक गिरोह तुम्हारे नजरियात पर हमलावर हो रहा है। अली बिन सुफियान उसके सामने टहल रहा था और उसकी बातें गौर से सुन रहा था। उसने आलम जासूस के पाँव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल रखी। इसका इरादा तो ये था कि इस जासूस को भी हर जासूस की तरह जीतों के इसी मरहले में से गुजारेगा जहाँ किसी भी लम्हे जासूस सारे राज उगल लेते हैं।
लेकिन उसने कैद खाने के एक मुहाफिज को बुलाकर इस आदमी की बेड़ी और हथकड़ियां खुलवा दी और इसके लिए पानी और खाना मंगवाया। उसने कहा, मेरे इस सलूक को उगलवाने का हरबा ना समझना, हम आदमों की कदर किया करते हैं, वो आपको किसी भी मजहब के हो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता, जो कुछ बताना पसंद करते हो बता दो, और मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। अली आलम जसूस ने कहा, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, तुम में फन का कमाल भी और जज्बे की हरारत। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दाद और क्या हो सकता है कि सिंध की बादशाह तुम्हें कत्ल कराना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के हम पर लाओ। मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने इल्म से ये हासिल किया है कि किसी कौम के तहजीब व तमद्दुन और मजहब को बिगाड़ दो तो फौजों के हमले और जंगो जदल की जरूरत बाकी नहीं रहती। किसी कौम को मारना हो तो इसमें जिनसी आग भड़का दो, यकीन ना है तो अपने मुसलमान हुक्मरानों की हालत देख लो। तुम्हारे रसूल ने कहा था कि नफ्स को मारो कि यही तबाही की जड़ है। तुम्हारी कौम ने इस पर कब तक अमल किया? रसूल की जिंदगी तक। यहूदियों ने अपनी हसीन लड़कियों से तुम्हारी कौम को भड़काया, आज तुम्हारी कौम नफ्स की गुलाम हो गई है। तुम में जिसके पास दौलत आ जाती है वो सबसे पहले हरम को औरतों से भरता है। हर मुसलमान ख्वाब वो गरीब ही हो 4 बीवियां जरूर रखना चाहता है। यहूदियों के रूप में तुम्हारे नजरियात में जिनसियत डाल दो। अगर अपने रसूल की हिदायत पर हम मुसलमान अमल पैरा रहते तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज दुनिया का 3/4 हिस्सा मुसलमान होगा, मगर अब ये हाल है कि 3/4 मुसलमान बुराई नाम मुसलमान है और तुम्हारी सल्तनत सिमटती जा रही है। तुम नहीं समझते कि ये इस हमले का नतीजा है जो मुझ जैसे आदमों ने तुम्हारे मजहब और तहजीब व तमद्दुन पर किया है। मेरे दोस्त, ये हमले जारी रहेंगे। मैं पेशीन गोई कर सकता हूँ कि एक रोज इस्लाम इस दुनिया में नहीं होगा। अगर होगा तो एक फरसुदा नजरिए की शक्ल में मौजूद रहेगा और इसका पैरोकार जिनसी लज्जत में मस्त होगा। हर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन ज़की नहीं बन सकेगा। इन्हें कल परसों मर जाना है, इसके बाद जो आएंगे इन्हें हम नफ्स परस्ती में मुब्तला कर देंगे। मुझे कत्ल कर दो, मेरी कौम को कत्ल नहीं कर सकते। इंसानों के मर जाने से मकासद नहीं मर जाया करते। मेरी जगह कोई और आएगा। हम इस्लाम को खत्म करके अपना गुलाम बना कर दम देंगे। अब चाहो तो मुझे जिल्लात के हवाले कर सकते हो, मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। अली बिन सुफियान ने उससे और पूछा भी कुछ नहीं। वो गालिबन सोच रहा था कि इसका काम किस कदर दुश्वार और कितना नाजुक है। इस तस्लीमी तकरीबकार ने जो कुछ कहा सच था। वो देख रहा था कि कौम के खिलाफ तबाही के जरासीम पैदा हो चुके हैं। अरब के उमरा वुज़रा तो पूरी तरह तबाह हो चुके थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मैदानी जंग में सलीबियों को शिकस्त देकर सल्तनत इस्लामिया को वसी तर करने के ख्वाब देख रहा था, मगर सलीबियों ने ऐसे पहलू से हमला किया था जिसे रोकना सुल्तान अय्यूबी के बाद से बाहर नजर आता था। अली बिन सुफियान आलम जासूस को कोठड़ी बंद करके इन कोठड़ियों के सामने जा खड़ा हुआ जिनमें लड़कियां कैद थी। वो एक कोठड़ी खुलवाकर अंदर चला गया। लड़की फर्श पर बैठी थी। इसे देखकर उठ खड़ी हुई। अली से खामोशी से देखता रहा और कुछ कहे बगैर बाहर निकल आया। अगले रोज दोपहर के खाने के बाद फौज और इंतजामिया के तमाम हाकिम और अहदेदार इस कमरे में जमा थे जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अहकामात और हदायत दिया करता था। इन सबको पता चल चुका था कि एक जासूस तो 2 लड़कियों के हमरा पकड़ा गया है। वो आपस में चहम गोइयां कर रहे थे कि सुल्तान अय्यूबी आ गया। उसने सबको गहरी नजर से यूं देखा जैसे इनमें से किसी को तलाश कर रहा हो। मेरे अजीज साथियों, उसने कहा, आपने सुन लिया होगा कि हमने एक मस्जिद से एक सलीबी को पकड़ा है जो वहां बाकायदा इमाम बना हुआ था। उसने तफसील से बताया कि इसे किस तरह पकड़ा गया। फिर इन्हें वो बातें सुनाई जो जासूस ने अली बिन सुफियान के साथ कैद खाने में की थी। अली बिन सुफियान ये बातें सुल्तान अय्यूबी को सुना चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं आपको ये बात सुनाने के लिए नहीं बुलाया कि जासूसों और तकरीबकारों से बचो। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि इस्लाम के दुश्मनों के साथ दोस्ती करने वाला जहन्नम में जाएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कुफार के साथ दोस्ती करने वाले के लिए मैं ये दुनिया जहन्नम बना दूंगा। मैं अब किसी गद्दार को सजाए मौत नहीं दूंगा। मौत निजात का जरिया है। मैंने अब गद्दार के लिए ये सजा कर रखी है कि इसके गले में रस्सी डालकर एक तख्ती आगे और एक पीछे लटकाकर इसे हर रोज बाजारों में घुमा फिराकर चौक पे खड़ा कर दिया जाएगा। तख्तियों पर लिखा होगा, मैं गद्दार हूँ। उसे हर रोज सुबह से शाम खड़ा रखा जाएगा ताकि वो भूखा प्यासा मर जाएगा और इसकी लाश शहर से बाहर फेंक दी जाएगी। इसके लवाकिन को इजाजत नहीं दी जाएगी कि इसका जनाजा पड़े या उसे दफन करें। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इससे दुश्मन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो एक और गद्दार पैदा कर देगा। जब तक इसके पास औरत की बेहियाई और ज़रो जवाहरात की फरावानी और हमारे पास ईमान की कमी है, वो गद्दार पैदा करता रहेगा। क्या ये आपकी गैरत के लिए चैलेंज नहीं कि आपका दुश्मन आपकी मस्जिद में बैठकर आपका कुरान हाथ में लेकर आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मसक करे? इस पहलू पर भी गौर करें कि इस्लामी जो लड़कियां यहाँ जासूसी के लिए और हमारी कौम को किरदार खुशी के लिए भेज रहे हैं, जिनमें बहुत सी लड़कियां मुसलमानों की बच्चियां हैं जिन्हें उन कुफार ने काफिलों से अगवा किया और इन्हें बदकारी
की शर्मनाक तरबियत देकर जासूसी के लिए तैयार किया है। फलस्तीन कुफार के कब्जे में है। वहां मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है वो मकसद ये है कि सलीबी इनके घरों को लूटते रहते हैं, वो फरियाद करते हैं तो कैद खानों में डाल दिया जाता है, उनकी कमसिन बच्चियों को गायब कर दिया जाता है। इनमें जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती हैं इनके जहनों से मजहब और कौमियत निकाल दी जाती है और उन्हें बेहयाई की तरबियत देकर मर्दों को उंगलियों पर निशाना सिखाकर इन्हें मुसलमानों के इलाकों में जासूसी और तकरीबकारी के लिए भेज दिया जाता है। इस गिरोह में इनकी अपनी लड़कियां भी होती हैं, इनमें तो शर्म हिजाब और असमत की कोई कदर ही नहीं। वो मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो वो वहाँ सबसे बड़ा जो इनकलाब लाए वो ये था कि उन्होंने मुसलमानों के लिए जीना हराम कर दिया, उनका कत्लेआम किया, उनके घरों को लूट लिया, मस्जिदों को अस्पतालों और गर्जों में बदल दिया, मुसलमान बच्चियों को अगवा करके उन्हें कहवा खानों में बैठा दिया गया। जो खूबसूरत निकली इन्हें तकरीबकारी और बदकारी की तरबियत देकर हमारे अमीरों और वजीरों के हरमों में दाखिल कर दिया और इन्हें हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया। मुसलमान घरानों की बच्चियों के घरों में मुसलमान जो फलस्तीन से भागे और हमारे पास पनाह लेने के लिए काफिला दर काफिला चले, उन्हें रास्ते में शहीद कर दिया गया। हमारी बहनों और बेटियों की आबरूरेज़ी सरेआम हुई और मेरे कलमा को भाइयों ये सिलसिला रुका नहीं, अभी तक जारी है। सलीबियों का मकसद सिर्फ ये है कि इस्लाम का कोई नाम लेवा जिंदा न रहे और मुसलमान लड़कियां ईसाइयों को जन्म दें। हम सब पर अल्लाह की लानत बरस रही है कि हम अपने इन मुसलमान भाइयों और उनकी बच्चियों को फरामोश किए बैठे हैं जो वहाँ जिल्लत और उससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि हम इन शहीदों को भी फरामोश किए बैठे हैं जो सलीबियों की बर्बरियत का शिकार हुए। मैं आपको कोई हुक्म देने से पहले आपसे पूछता हूँ कि इस सूरत हाल पर हमें क्या करना चाहिए। आप में तजर्बाकार फौजी हैं और इंतजामिया के हाकम भी। पुरानी उम्र का एक कमांडर उठा, उसने कहा, मीरे मिस्र, हमें आपके हुक्म की जरूरत ही क्या है। ये हुक्म खुदाबंदी है कि तुम्हारे पड़ोस में मुसलमान नस्ल पर जुल्म हो रहा हो और वहां के मुसलमान खुदा को मदद के लिए पुकार रहे हों, तो हम पर यह फर्ज आयद होता है कि इस मुल्क पर फौज कशी करके अपने कलमा गो भाइयों को निजात दिलाएं। हमें फलस्तीन पर फौज कशी करनी चाहिए। नाइब सलार के रुतबे के एक और शख्स ने उठकर जोश में कहा, कुफार पर फौजकशी से पहले आप इन मुसलमान हाकिमों और उमरा पर फौजकशी करें जो दरपरदा कुफार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हमारे लिए ये सूरत हाल बायसे शर्म है कि हमारी सफों में गद्दार भी हैं। फैजुल फातमी के रुतबे का आदमी गद्दार हो सकता है तो छोटे ओहदों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। एक मुसलमान बच्ची की आबरू रेजी का इंतकाम लेने के लिए सारी कौम को फना हो जाना चाहिए, मगर यहाँ हमारी एक पूरी नस्ल की आबरू रेजी हो रही है और हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सलीबियों ने हमारी बच्चियों को बदकारी के लिए तैयार किया है और हमसे इनके साथ बदकारी करा रहे हैं। मोहतरम अमीर, अगर मैं जज्बाती नहीं हो गया तो मुझे ये तजवीज़ पेश करने की इजाज़त दें कि हमें फ़लस्तीन लेना है। सलीबियों ने हमारे किबा अमल को बदी का मरकज़ बना दिया है। एक और आदमी उठा, लेकिन सुल्तान यूबी ने हाथ के इशारे से उसे बैठा दिया और कहा, मैं यही सुनना चाहता था। आप में से जो मेरे करीब रहते हैं जानते हैं कि मेरा अव्वलीन हदफ फ़लस्तीन है। मैं मिस्र की इमारत के फराइज संभालते ही फ़लस्तीन पर हमला करना चाहता था, मगर 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। ईमान फरोशों ने मुझे मिस्र में ऐसा उलझाया है जैसे मैं दलदल में फंस गया। जरा इन 2 सालों के वाक़यात पर गौर करें। आप सलीबी तकरीबकारों और गद्दारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सूडानियों को हमारे खिलाफ लड़ाने वाले हम में से ही हैं। सूडानी हबशियों से मिस्र पर हमला कराने वाले हमारे अपने सलार और कमांडर थे। वो इस कौमी खजाने से तनख्वाह लेते थे जिसमें कौम का पैसा है और जिसमें खुदा के नाम पर दी हुई ज़कात का पैसा है। मैंने इस उम्मीद पर 2 साल गुजार दिए कि मैं जासूसों, इन्हें पनाह और मदद देने वालों और ईमान फरोशों को ख़त्म करके फ़लस्तीन पर हमला करूँगा, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तकरीबकारी का ये सिलसिला कभी ख़त्म ना होगा। क्यों ना इस चश्मे को जाकर बंद किया जाए जहाँ इस्लाम दुश्मनी के सामान पैदा किए जाते हैं। हम सलीबियों को खुद मौका दे रहे हैं कि वो हमें हमारी सफ़ों में गद्दार पैदा करें। मैंने आपको आज इसलिए बुलाया है कि फ़लस्तीन पर हमले में अब ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। फ़ौज की जंगी मशकें और तरबियत तेज़ कर दो। मुजाहिदीन को लंबे अरसे का मुहासरा करने की मशक कराओ। मुझे तुर्क और शामी दस्तों पर पूरा एतमाद है। मिस्रियों और वफादार सूडानियों में जज्बा पैदा और पुख्ता करने की ज़रूरत है। इनमें दुश्मन के खिलाफ कहर और गज़ब पैदा कर दो। ये इसी सूरत में मुमकिन होगा कि इनमें गैरत पैदा करो और इन्हें बताओ कि वो तुम्हारी ही बहनें और बेटियाँ हैं जो सलीबियों की दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। आम इंतजामिया के जो हजरात हैं, इनके ज़िम्मे ये फ़र्ज है कि वो मुर्शद के मामपेशों से कहें कि लोगों को जहाद की गर्ज़ोगायत वाज़ेह करें और नौउम्र लड़कों में अस्करी ख्यालात पैदा करें। कोई भी पेश इमाम या खतीब इस्लामी नज़रियात को गलती से या दानिस्ता गलत रंग में पेश करता है, उसे इमामत के
فرائض سے سبکدوش کر دیں۔ اگر کردار مضبوط ہو تو کوئی کشش اور کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ ذہنوں کو فارغ نہ رہنے دیں، کھلا نہ چھوڑیں ورنہ دشمن انہیں استعمال کرے گا۔ فوجوں کے کوچ کے احکامات آپ کو جلد مل جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔